So, hello everyone, welcome to Dr. MDS Academy again. So, today in this lecture, we are going to solve one numerical, okay, asked in engineering service exam, conventional numerical, okay. So, based on the what is the calculation for length of open belt. Similarly, you can calculate length for the cross belt also. Apply this formula for calculating the power difference between the tension into velocity of the belt. Okay, then after we will apply what is the overlap angle. Okay, how you can apply in the question. Then after cutting the belt, how you can use this cross section area when stressing tension stress is given. Okay, then after centrifugal tension, okay, will also be considered in this question. Okay, then after T1 upon T2 ratio is equal to e to the power mu theta upon sin phi will only be appeared for the V belt. This will be absent when there is flat belt. Okay, depending upon the questions provided. Now we will solve this one. See, this question asked in engineering service exam, okay, in 2007 of carrying 20 marks. So it's a very big those marks. Okay. Now let's solve this. Design a flat belt drive system for the following specifications. Power to be transmitted 100 kilowatt. What is given? Given. Okay. So write it here. Given. What are the parameters given? Power is given. Okay. This power is 100 kilowatt. Okay. Pulley diameter 0.8 meter and 1 meter respectively. So D1 diameter is given 0.8 meter. Okay. D2 diameter is given how much? 1 meter. Center distance between the pulleys is X is given 3 meter. Belt speed given is V is equal to 20 meter per second. Okay. Coefficient of friction between the belt and the pulleys are mu is equal to 0.3. Slip given is 1.2% at each pulley, means S1 equal to S2 equal to S. For each pulley, slip provided is 1.2%. Friction loss at each shaft. Okay. So friction loss at each shaft given is 5%. Overload capacity given is 20%. Okay. Density of the leather belt is given 1000 kg per meter cube. Okay. Safe stress of the belt is safe. Safe means two belts will open belt drive or even cross belt drive will always be acting in a tension. So this stress is tension, given tension stress. Okay, safe stress of the belt 2.5 mega pascal. Okay, because tension will always be acting when one driver is driving the driven pulley. Okay, now next, thickness of the belt varying between 12 to 16 mm. Okay. So T given is 12 to 16 mm. Take into account the effect of centrifugal tension. TC also we have to consider. Okay. Find width of the belt and length of the belt. B we have to calculate, and length of the belt also we have to calculate. Okay, flat belt drive system of the following specification. Now,
ठीक है. Draw the symmetric diagram of the belt drive. Okay. Now we will consider here. Okay. Now we will consider here and draw diagram. यहाँ पर डायग्राम भी बोल रहा है ड्रॉ करने के. ठीक है. These three things we have to find out. So how will proceed? Okay. So here we will draw diagram based on the data provided. This is our one. See, diameter D1 is 0.8, D2 is 1. So 1 will be small, 0.8 का होगा. ठीक. और D2 होगा 1 मीटर का. तो दिस विल बी ऑफ 1 मीटर. ठीक है. यहाँ पर यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ठीक है. एक छोटा एक बड़ा होगा. ओके. नाउ अनदर वी विल ड्रॉ. ये क्या है? ओपन बेल्ट ड्राइव है ना. एक ये हो गया, एक ये हो गया. अब इस बेल्ट को मैं क्या करूंगा? कंप्लीट करूंगा. ठीक है. तो हमें यहाँ से उठेगा ये. ठीक है. यहाँ पर एक दोबारा फिर से उठेगा, यहाँ से कनेक्ट करेगा और यहाँ पर जाएगा. ठीक है. इस तरीके से. उसके बाद मतलब ये कुछ के टाइप का बनेगा. यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. ठीक है. तो diagram will be something like this. Okay, we will consider here open belt drive. Okay, so diagram is will be something like this. So this is our what? This is given center to center distance x. So x is equal to 3 meter. What is d? What is d? What is here? This one is what? Okay, this one is d1 upon 2 already given here. This is how much? d2 upon. Okay. ओके. तो ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल विल बी आवर अल्फा. ठीक है. दिस विल बी आवर अल्फा. ओके. दिस विल बी आवर अल्फा. दिस विल बी आवर अल्फा. दिस विल बी आवर अल्फा. ठीक है. तो छोटे वाला पुल्ली में हमें क्या मिलेगा? ये वाला एंगल कितना मिलेगा? एंगल ऑफ ओवरलैप और कांटेक्ट विल बी थीटा. तो ठीक है. यहाँ पर दिस इज आवर ड्राइविंग पुल्ली. This is our driven pulley. Driven
fully. ठीक है, yes है, this is our in right side means T1 tension and T2 tension. Okay, so let T1 and T2 tension of the belt on tight and slack side respectively. ठीक है, नाउ अब हम लोग कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर हम लोग करेंगे V1 velocity, V velocity of the belt is given, belt for belt it is given. okay, देखो यहाँ पर बेल्ट का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है. दिस इज अवर ड्राइवर. ओके, ड्राइविंग पुली और ड्रिवन पुली. तो हमें क्या करेंगे, यह स्लिप भी दे रखा है. ठीक है, तो स्लिप और वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, ये मोटर से कनेक्ट है ना, तो हमेशा वेलोसिटी ज्यादा होगा कंपेयर टू बेल्ट का. क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्लिप हो रहा है ना. तो हमेशा ये इनपुट है, दिस इज आवर ड्राइवर पुल्ली जो कि मोटर से कनेक्ट है. मोटर में तो स्लिप नहीं होता है. तो दिस इज आवर ड्राइवर. सो वेलोसिटी ऑफ पाई डी वन इन वन विल बी ऑलवेज व्हाट, ग्रेटर पाई डी वन इन वन अपॉन 60. वेलोसिटी जो आ रहा है इस शाफ्ट का जो रोटेट कर रहा है लाइक दिस. ठीक है, फिर इसको मदद कर रहा है इसको चलाने में. ठीक है, तो दिस पाई डी वन, ये वाला पाई डी वन इन वन अपॉन 60 शाफ्ट के ऊपर जो मिल रहा है, ठीक है, विल बी ऑलवेज मोर. ठीक है, कितना, S1 और S2 बराबर है S अपॉन 100%. ठीक है, इनटू पाई डी वन एन वन अपॉन 60. इतना गंवाने के बाद माइनस. ठीक है, हमें वेलोसिटी बेल्ट तक भी पहुंच रहा है. ठीक है, तो दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर. तो ग्रेटर को माइनस करो S अपॉन 100 से, यू विल बी गेटिंग जो लॉस हुआ है इतना माइनस करने के बाद v के बराबर वेलोसिटी बेल्ट तक पहुंच रहा है. दिस इज आवर बेल्ट जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है, v इक्वल टू पाई डी वन एन वन अपॉन 60 ब्रैकेट 1 माइनस एस बाई 100. ठीक है, स्लिप, this is nothing but slip. Velocity how much given, 20 meter per second. So 20 equal to pi. How much d diameter given, d1 na, this d1 na. So d1 how much given, d1 is given 0.8. So 0 point meter में 0.8. ठीक है, n we don't know upon 60. ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस s, s how much given 1.2%. तो 1.2 नीचे में 100 रहेगा ये. ठीक है, 1.2%. ठीक है, यार ये नहीं कि 1.2 और नीचे में 100 कर दे फिर ये 100. तो s percent means 1.2 divided by 100. So from here we will be getting n1. So use calculator. 0.8, okay, divided by 60 into 1 minus 1.2 divided by 100. This value, ठीक है, into 20 divided by I. So you will be getting 483.26. 483.26 RPM. ओके, RPM में आ रहा है. ठीक है, और RPS में आ रहा है.
ये किस में है, मीटर पर सेकंड में। 60 से किया हूँ डिवाइड यहाँ पर, क्यों, क्योंकि आरपीएम में है, बाय डिफॉल्ट ये आरपीएम में आएगा, तभी तो 60 से किया हूँ। ठीक है, दिस इज इन आरपीएम। ओके, तभी तो मैं 60 से सेकंड्स में किया हूँ कन्वर्ट। ठीक है, तो n1 is this one. Now similarly we will find out n2 also. Okay, n2 also कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो शाफ्ट में पावर मिल रहा है n2 पाई d2 n2 मिल रहा है ना, जो अल्टीमेटली हमें आउटपुट दे रहा है, ड्रिवन पुल्ली को चला रहा है, ये हमेशा कम वेलोसिटी पहुंचेगा ना, लॉस, बहुत सारा लॉस होने के बाद। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे जो वी वेलोसिटी यहाँ से बेल्ट से आ रहा है, ये वी वेलोसिटी जो बेल्ट से आ रहा है, ओके, और इस वेलोसिटी पाई डी टू एन टू में क्या डिफरेंस है, कौन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है वी जो आ रहा है इनपुट है, और ये हमें जो रोटेट कर रहा है दैट इज आवर आउटपुट। तो अल्टीमेटली आउटपुट में स्लिप होने के बाद, बिटवीन द बेल्ट एंड द पुल्ली होने के बाद यहाँ पहुंच, ये छोटा है, छोटा है, ये हमेशा छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो यहाँ पर v में से और s अपॉन 100 कर दे, क्या मल्टीप्लीकेशन स्लिप, मतलब v को घटा दे तो इसके बराबर होगा d2n2। कैसे होगा, देखो, हाँ, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, पाई d2n2 अपॉन 60, ये सबसे कम वैल्यू है, ये कम वैल्यू मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन किसके कारण मिल रहा है, v के कारण मिल रहा है। तो v तो हमेशा ज्यादा है ना, क्योंकि ये इनपुट है, इसमें से माइनस कर दो एस अपॉन 100 इंटू वी, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, पाई d2 हाउ मच गिवन, 1 मीटर गिवन ना, 0.8, और ये, ठीक है, d2 इज आवर 1 मीटर, d2 is our 1 into 1 into n2 we don't know, upon 60 equal to velocity how much given, यहाँ से v निकालो, 1 माइनस एस बाई 100। ठीक है, यहाँ से भी वेलोसिटी 20 दे रखा है क्या, 20 मीटर गिवन ना, 20 मीटर बेल्ट का वेलोसिटी, ब्रैकेट में 1 माइनस एस 1.2% दे रखा है अपॉन 100, स्लिप गिवन ना 1.2, here slip is given 1.2%. So ultimately we will be calculating n2 will come, क्या आ रहा है n2, 1.2 divided by 100, 1 minus this answer into 20 into 60 divided by 5. So we will be getting 377, 377, ठीक है, 0.388 आरपीएम, एक ही डेसिमल 39 कर देते आरपीएम। ओके, तो देखो n1 हमेशा, n1 और n2 क्या आ रहा है, n1 क्या है, n1 483 और n2 है 377.39, मीन्स दैट n1 हाई स्पीड से आरपीएम से रोटेट कर रहा है और n2 लो स्पीड से, मतलब कि n2 का साइज पुल्ली का बड़ा है, तभी तो बड़ा डायमीटर छोटा रोटेशन ले रहा है। ठीक है, सो ये तो आ गया मेरे पास। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, ये डेटा को यूज करने के लिए फ्रिक्शन लॉस, ओवरलोड, ओवरलोड क्या था, ओवरलोड कैपेसिटी 20% है, इसको यूज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, निकालना पड़ेगा मेरे को टॉर्क। ठीक है, टॉर्क के ऊपर में ओवरलोड और हम लोगों का ये डेटा यूज, फ्रिक्शन लॉस यूज।
नाउ पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टी इंटू ओमेगा टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, या टी इंटू ओमेगा यूज करते हैं। ओके, हमें फोर ड्रिवन पुली के लिए, ड्रिवन पुली के लिए, है ना, इसके लिए यूज करेंगे दिस फॉर दिस केस। फॉर ड्रिवन पुली के लिए तो पावर दे रखा है, पावर टू बी ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट कर रहे हैं, किसमें ट्रांसमिट कर रहे हैं, किसमें ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम ट्रांसमिट कर रहा हूं मैं ड्रीवन पे, ड्रीवन पुल्ली के ऊपर में, मतलब आउटपुट पुल्ली में ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसमें ट्रांसमिट कर रहे हैं टू नंबर वाला पे, ठीक है, दिस इज आवर टू नंबर वाला, दिस इज आवर टू नंबर वाला, दिस इज आवर वन नंबर वाला, ठीक है, टू नंबर पे हम लोग पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, पावर कितना दे रखा है, टी इंटू ओमेगा, ओके, तो पावर हाउ मच गिवन, power how much given, P is equal to T into omega, we will use power how much given, power is given 100 किलोवाट, ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, T इंटू टू पाई N2 अपॉन 60, ठीक है, ये किसके लिए आएगा, ये टॉर्क आएगा N2 के लिए, पावर T2 दे रखा है ना, ड्रिवन के लिए, टू नंबर वाला के लिए, टू नंबर पुली, टू नंबर पुली, तो पावर कितना दे रखा, 100 किलोवाट, दिस वन, तो 100 इंटू एसआई यूनिट में 10 to the power 3 इक्वल टू टॉर्क, दिस वन इंटू टू पाई N2 जस्ट कैलकुलेट किया क्या, हियर कैलकुलेट किया क्या, so engineering service exam the solutions is very big, so you will be getting marks in each and every step, so be alert to solve each and every step carefully. So N2 how much given? 377.39 divided by 60. So this will give NT2. So calculate करो, 39 divided by 60 into 2 into pi, ये आया into 100 into 10 to the power 3. So this will come 2530.35 न्यूटन मीटर में, ये आ रहा है हम लोग का क्या, T2 में, मतलब कि ड्रिवन के ऊपर में कितना टॉर्क लग रहा है, यहाँ पर कितना टॉर्क लग, यहाँ पर कितना टॉर्क लग रहा है, हियर इन दिस, एट दिस प्लेस, ठीक है, एट दिस प्लेस टॉर्क हाउ मच एक्टिंग। अब मैं यूज करूंगा कौन सा डेटा, दीज डेटा, जो कि ये दे रखा है प्रैक्टिकल वाला, फ्रिक्शन लॉस 5% हो रहा है, ठीक है, मतलब ये टॉर्क इतना मिल रहा है, T2 इतना मिल रहा है यहाँ पर, तो बेल्ट पर टॉर्क कितना मिल रहा होगा, ठीक है, टॉर्क ऑन ऑन बेल्ट, ठीक है, कितना मिल रहा होगा, 2530.35, ये देखो घटते हुए मिल रहा है ना, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर टॉर्क ज्यादा होगा, फिर लॉस होने के बाद बेल्ट पे पहुंचा,
फिर बेल्ट जो 5% लॉस करने के बाद यहाँ मिला। अब मैं उल्टा जा रहा हूँ, ठीक है, रिवर्स में 5% यहाँ लॉस किया तो ऐड करूंगा तो ये आएगा क्या, फिर यहाँ से ऐड करूंगा तो इस शाफ्ट के ऊपर भी 5% ऐड करूंगा तो यहाँ आएगा टॉर्क, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें आउटपुट ड्रिवन पुल्ली पर हमें जो मिल रहा था टॉर्क, दिस वाज। अब बेल्ट पे कितना टॉर्क मिल रहा है, ठीक है, टॉर्क कितना मिल रहा है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे क्या, टॉर्क ऑन बेल्ट इज इक्वल टू, इसको मतलब छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, ठीक, तो 5% हम लोग को देना पड़ेगा, 1.05 करना पड़ेगा, 5% एडिशन, या यू कहें 1% प्लस 5/100%, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 1.05 आएगा ना, ठीक है। दिस इज और व्हाट, फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। 5% ये पूरा का पूरा दे रखा है, दिस होल 5%, ठीक है। तो then after we will be getting answer into 1.05. So this is our 265 6.87, ठीक है, न्यूटन मीटर। ये हो गया हमें। अब एक और डेटा दे रखा है, ओवर लोड कैपेसिटी, ओवरलोड कैपेसिटी 20%, मतलब बेल्ट को यदि ओवरलोड कैपेसिटी पे चलाया जाए तो डिजाइन टॉर्क फॉर बेल्ट क्या आएगा, बेल्ट को और थोड़ा मजबूत करना है मेरे को, 20% और थोड़ा मजबूती से ले जाना है, तो ये टॉर्क और 20% ज्यादा बियर करना चाहिए, है ना। हियर 2656.87 इंटू 20%, ठीक है, तो 1.2 करेंगे क्या, ठीक है, फॉर ओवरलोड कैपेसिटी, यानी कि 1 + 20%, ठीक है। ये क्या दिया, इज इक्वल टू 1.2 आ रहा है क्या, 20, है ना। ये क्या है, ये ओवरलोड कैपेसिटी के लिए, ओके, मतलब और थोड़ा बेल्ट यदि ओवरलोडेड हो गया और ज्यादा लोड से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो 1.2 मतलब 20% और ऐड कर देना है टॉर्क बेल्ट पर, ठीक। नाउ ये कितना आया कैलकुलेशन के बाद 1.2, ये आ रहा है 3188.24 न्यूटन मीटर, ठीक है, ये इतना आ रहा है। ओके, तो इतना होने के बाद, है ना, इतना होने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए हमें, नेक्स्ट क्या करना चाहिए हमें, हम लोग देखेंगे ये अल्टीमेटली ये टॉर्क जो आ रहा है, दिस इज व्हाट दिस इज द टॉर्क। हम T1 और T2 ऑलरेडी डिफाइन किए, व्हाट इज T1 एंड व्हाट इज T2, ओके। नाउ अब क्या करेंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन ड्रिवन, टॉर्क एक्टिंग ऑन ड्रिवन ड्रिवन पुल्ली, क्या टॉर्क एक्ट कर रहा है हमें ड्रिवन के ऊपर, T1 टेंशन है, T2 टेंशन है, इनटू यूनिट क्या होता है टॉर्क का, न्यूटन मीटर, तो ये तो आ गया न्यूटन में, और ये क्या करूंगा R2 होगा क्या, यानी D2/2 होगा क्या, ठीक है, ये हमें टॉर्क देगा,
तो T1 we don't know, T2 we don't know, diameter we know 1/2 है ना, तो 0.5 D2 का दे रखा है ना डायमीटर 1 मीटर, 1 मीटर इज गिवन ना इस D2 के लिए है ना। तो T1 माइनस T ये आ गया मेरे पास, क्या ये टॉर्क, ठीक है, इसके बराबर होगा दिस आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2। इक्वेट इक्वेट इक्वेशन 1 and 2, so what we'll get, T1 minus T2 इक्वल टू कितना आया था 3188.24। ओके, so ultimately T1 minus T2 we are getting 0.5, so we are getting 3188.24 divided by 0.5, so we are getting 6376.48 Newton meter। Okay, so why we have equated 2 and 1? देखो ये बेल्ट के ऊपर टॉर्क लग रहा है ना, जो मैं ओवरलोड और फ्रिक्शन लोड लॉस लेके कंसिडर किया, ये यहाँ तक टॉर्क मिला बेल्ट के ऊपर। सेम बेल्ट टॉर्क क्या कर रहा है ड्रिवेन के ऊपर में डाल रहा है, ठीक है, टॉर्क, ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव इक्वेटेड दिस टू। ओके, तो ये आ गया मेरे पास, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ वी नो व्हाट वी नो, T1 upon T2 is equal to e to the power mu theta। साइन फाई नहीं करेंगे या साइन बीटा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ओपन बेल्ट, वी बेल्ट ड्राइव इज नॉट, ठीक है, ओपन बेल्ट ड्राइव है, फ्लैट बेल्ट ड्राइव है, फ्लैट है, वी बेल्ट नहीं है। ओके, सो put all the values e to the power mu, how much friction, coefficient of friction given, ठीक है, ये 0.3, 0.3 और थीटा पता नहीं, तो इसको यहाँ पर अभी पेंडिंग छोड़ दो, है ना। थीटा ओवरलैप क्या होगा, थीटा इज क्या है, थीटा इज आवर ओवरलैप, ओवरलैप एंगल, ये ओवरलैप एंगल है क्या, देखो कौन सा लेंगे ओवरलैप एंगल, एक थीटा यहाँ पर आ रहा है, एक थीटा यहाँ पर आ रहा है ना, एक थीटा यहाँ पर आ रहा है, एक थीटा यहाँ पर आ रहा है, कौन सा लेंगे, ये बड़ा वाला लेंगे कि छोटा वाला थीटा लेंगे, डेफिनेटली छोटा वाला थीटा लेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों का रिस्क सबसे ज्यादा फेल होने का ड्राइविंग के ऊपर में है, ड्राइवर के ऊपर पे है, क्योंकि ये छोटा पुली है, छोटा साइज, फेलियर ज्यादा, ठीक, क्योंकि डायमीटर छोटा, कमजोर है, वीक है, सॉफ्ट मटेरियल कम है, फेल होने का चांस इज हाई। ओके, सो वी विल यूज दिस थीटा, क्या आएगा 180 डिग्री में से 2 थीटा को 2 अल्फा को माइनस कर दो, तो अल्टीमेटली दिस विल गिव 180, दिस विल गिव थीटा विल बी 180 डिग्री minus 2 alpha, this will give theta, ठीक है, ये आएगा क्या, तो सिमिलरली here you will get theta is equal to 180 degree minus 2 alpha। Okay, so you will have to know what is alpha here। तो अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, अल्फा क्या करेंगे, सेम हम लोग वो काम करेंगे जो काम हम लोग डेरिवेशन में करते हैं, लेंथ ऑफ पेन बेल्ट और लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट को निकालने के लिए, ऐसे ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है, सो दिस विल बी आवर
अल्फा। ओके, ये अल्फा इस ट्राइंगल में देखो, दिस इज आवर ओ वन, दिस इज आवर ओ टू, दिस इज आवर एम। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ वन ओ टू एम, ओ वन ओ टू एम, ये यहां तक आएगा। ठीक है, तो दिस इज दिस वन, दिस इज दिस वन। ठीक है, तो ये वाला हमें, ये क्या है, दिस इज आवर एम। ओके, दिस इज आवर एम, तो दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, ये वाला नहीं था, है ना। ये एंगल, ये एंगल हमें अल्फा देता है। ठीक है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल अल्फा। ठीक है, दूसरा कलर यूज कर, ये वाला, ये वाला। ठीक है, दिस इज आवर अल्फा। ठीक है, इसको हटा के बेटर कर, दिस इज आवर पॉइंट। तो क्लियर है। नाउ इन ट्राइंगल ओ वन ओ टू एंड एम, इन इन ट्राइंगल ओ वन ओ टू एंड एम। ओके, क्या है, क्या है यहाँ पर, ये वाला एंगल है, हमें एक्स, दिस इज आवर हाइपोटेनियस, ओ वन ओ टू इज हाइपोटेनियस एंड ओ टू एम इज आवर परपेंडिकुलर। ओके, तो ये आ गया, और ओ वन एम इज आवर बेस, जो कि जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग साइन अल्फा लगाते हैं तो काम बनेगा, साइन, ठीक है। हाँ, साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो फिर से ओ टू एम डिवाइडेड बाई दिस ओ वन ओ टू, क्या है, ओ टू एम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ओ वन ओ टू। तो व्हाट इज ओ टू एम गिवन, आर टू माइनस आर वन है क्या, अपॉन ओ वन ओ टू क्या है, एक्स डिस्टेंस है क्या। तो व्हाट इज हियर, व्हाट इज व्हाट इज हियर, अल्फा यदि निकालू यहाँ पर, ये वाला ओ टू से एम, तो ये क्या है, रेडियस हाउ मच गिवन, रेडियस इज, दिस रेडियस इज, दिस रेडियस इज आर टू। ठीक है, और ये रेडियस इज आर वन। ठीक है, तो ये वाला कितना आएगा, ओ टू से एम डिस्टेंस क्या होगा, इस बड़े वाला आर टू में से, दिस इज पैरेलल ना, ये वाला पैरेलल, ये वाला एम से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू आर वन है। ओके, सो आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई दिस एक्स डिस्टेंस, तो आर टू इज हाउ मच, 0.5, डायमीटर का हाफ, और ये कितना है आर वन 0.4, डिवाइडेड बाई एक्स हाउ मच डिस्टेंस, एक्स सेंटर टू सेंटर 3 मीटर। ठीक है, सो आर वन आर टू क्या लिए हैं, यहाँ पर कर दो ना, आर टू इज 0.4 मीटर, और यहाँ आर वन होगा, R1 is this one, R2 is 0.5 मीटर।
ठीक है, और x हो गया हमें 3 मीटर, तो वैल्यू डायरेक्टली विल पुट 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का अल्फा का वैल्यू आएगा डिग्री में 0.5 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 3 साइन इनवर्स। तो आ रहा है मेरे पास अल्फा का वैल्यू 1.91 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमें यूज करेंगे 4 वाले इक्वेशन में या रेडियन में, तो कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन, दिस इज इन डिग्री। सो और अल्फा इक्वल टू 1.91 इंटू रेडियन में पाई बाई 180। ठीक है, दिस डिग्री, दिस इज ऑल्सो इन डिग्री, ये रेडियन में देगा, डिवाइडेड बाई 180 डिग्री इंटू पाई, मतलब 3.14, 0.033 रेडियन। ठीक है, अब मैं यूज करता हूं यहाँ पर पुट पुट हाँ, ये तो मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है। पुट अल्फा इक्वल टू, ओके, अभी मेरे को रेडियन में नहीं करना है, ठीक है, इसको अभी काम नहीं है रेडियन में करने का। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे थीटा। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम, क्योंकि हमें अल्टीमेटली 4 वाले इक्वेशन में थीटा इंसर्ट करना है, तो थीटा वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम इक्वेशन 5, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। तो 180 डिग्री माइनस 2 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है यार डिग्री में, लेकिन डिग्री में 1.91 कितना आया रिजल्ट, 180 माइनस 2 इंटू 1.91, तो दिस इज कमिंग 176.18 डिग्री। सो रेडियन में क्या आएगा, रेडियन में क्या आएगा 176.18 इंटू पाई बाई, ये डिग्री में है, अपॉन 180 डिग्री, तो डिग्री डिग्री यूनिट खत्म, डिवाइडेड बाई 180 इंटू पाई, ये दे रहा है 3.07, ओके, रेडियन। नाउ we'll use this equation number, suppose 6, put 6 in 4, okay, what will get, t1 upon t2, t1 upon t2 is equal to e to the power 0.3 into theta, theta put करते हैं वैल्यू 3.07, so ultimately 0.3 e to the power आंसर आ रहा है 2.51, so this is our t1 upon t2, okay, 2.51, ठीक है, क्वेश्चन नंबर। अब देखो मेरे पास क्या आया, इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास, मेरे पास इक्वेशन नंबर कौन सा है, इक्वेशन नंबर 3 है और 7 है, तो यहाँ से t1 और t2 निकल जाएगा क्या, 3 और 4 से, फ्रॉम 3 एंड 7, t1 और t2 निकलेगा क्या, ठीक है, t1 को t1 रहने दो माइनस t2, को क्या करें, t1 अपॉन 2.51 कर दें, यहाँ से आएगा इक्वल टू 6376.48, यहाँ से t1 क्या आ रहा है, 1 माइनस आंसर, ठीक है,
637.6.48. So this is coming, T1 is coming 1058.3.9, okay 5 न्यूटन। ये क्या है, ये क्या है, टेंशन है, तो न्यूटन में आएगा। सिमिलरली T2 क्या आ गया, यहाँ से T1 अपॉन 2.51, तो कितना आ रहा है 10583.95 अपॉन 2.51, तो डिवाइडेड बाय 2.51 कितना आ रहा है T2 इज 4216.7, ठीक है न्यूटन में, है ना। तो मेरे पास ये आ गया T1 और T2। तो मेजॉरिटी ऑफ काम हम लोगों का हो चुका है, और हम लोग क्या करेंगे, अब टीसी के ऊपर काम करेंगे। टीसी बोले तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बोला है ना क्वेश्चन में लेने के लिए। लेट टीसी इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, क्या होता है, एम वी का स्क्वायर, है ना। तो कैसे होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू, मास तो दे नहीं रखा है, डेंसिटी दे रखा है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मेरे पास कोई बेल्ट है, इस तरीके से कट क्रॉस सेक्शन एरिया बेल्ट है ना, ये इस तरीके से कट क्रॉस सेक्शन कट किए हैं बेल्ट को, तो ऐसा दिख रहा है। दिस इज आवर बी विड्थ एंड दिस इज आवर थिकनेस टी। तो टेंशन दे रखा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, मास निकाल सकते हैं, डेंसिटी हमें मालूम है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स बी इंटू टी, है ना, बी इंटू टी, एरिया हो गया। लेकिन अभी हम लोग लेंथ से, दिस इज आवर लेंथ ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ, तो इंटू 1 किए हुए इंटू वी स्क्वायर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, ठीक है। अब देखो हियर लेट बी इज इन mm, यह है क्या, mm में है तो 10⁻³ कर दूं मैं, ठीक है, mm, b को 10⁻³ करूंगा तो मीटर में आएगा। t इज द थिकनेस इन मीटर, t is thickness in meter, b is the width of belt, ठीक है, t is the thickness in meter, ठीक है, या mm में भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं b को लेट करके चला हूँ, b को mm में है, width of the belt है, ओके, एंड 4 पर यूनिट लेंथ लिया हूँ, इसीलिए यहाँ पे 1 मीटर किया, ओके 1 मीटर किया हूँ। तो आगे बढ़ते हैं इसको लेकर, ओके। तो TC is equal to TC is equal to rho. Rho, how much density given in the question? 1000, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। T is the 1000, ठीक है। B is the width, B जो है mm में ले रखे 10⁻³ मीटर में लेके चल रहा है ना, दिस B, ओके। तो इसको अल्टीमेटली थोड़ा बेटर अरेंज कर, डेंसिटी, ठीक है, इंटू मास, डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ना, वॉल्यूम, ठीक है, इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, ब्रेक करके, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, बी, ठीक है, बी इंटू बी में ले रखे हैं तो 10⁻³ करता हूँ मीटर में लाने के लिए, ठीक है, इंटू
टी थिकनेस मीटर में लिया हूँ क्योंकि क्वेश्चन में भी देखते हैं, ठीक है, इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, सेम थिंग आई एम यूजिंग हियर। 1000 डेंसिटी हो गया, b इंटू 10⁻³ इज इन मीटर, t इज द थिकनेस। टी थिकनेस कहाँ से लाऊं भाई, दे रखा है कि यहाँ दो दो थिकनेस दे रखा है बेल्ट का, 12 to 16, यानी कि बेल्ट कुछ इस तरीके, है ना, इस तरीके से बेल्ट होगा, 3D में देखे तो इस तरीके, है ना, बेल्ट। ये हो गया बेल्ट का बी विड्थ, ठीक है, और ये हो गया बेल्ट का थिकनेस। तो थिकनेस वेरी कर रहा है, कहीं ज़्यादा है, कहीं ये देखो यहाँ पर ज़्यादा हो गया, इसीलिए 16 हो गया, यहाँ पर कम हो गया तो 12 हो गया, मतलब कि उबड़ खाबड़ है। इसका एक मीन थिकनेस लेंगे हम, क्या लेंगे, मीन थिकनेस, मीन थिकनेस ऑफ बेल्ट, ठीक है, इज इक्वल टू 12 + 16 डिवाइडेड बाई 2 ले लें, ठीक है, यही है ना, 12 16, ठीक है, करेक्ट। तो दिस विल कम 28 डिवाइडेड बाई 2, है ना, 14, इसमें mm में है क्या, 14 mm में, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बी थिकनेस, वैल्यू पुट करने के लिए 14 मीटर में ले जाओ 10⁻³ ठीक है। तो इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी किसका, बेल्ट का दे रखा है क्या यूनिट, 20 मीटर पर सेकेंड, इसीलिए मैं यहाँ पर सभी को मीटर में लाया हूँ क्योंकि वेलोसिटी को भी मीटर में लाना पड़ा, दे रहा है 20 मीटर, ये मीटर में, तो इसको मीटर में, अब बी को एज्यूम किया हूँ कि इन mm, तो मीटर में कर दिया 10⁻³ ठीक है। अल्टीमेटली दिस विल बी इन बी फॉर्म, नो डाउट। तो ये से ये कैंसिल, है ना, तो बाकी कैलकुलेट करते हैं, 14 इंटू 10⁻³ इंटू 20 का स्क्वायर, तो दिस इज कमिंग 5.6 इंटू बी, है ना, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। टीसी इज इन बी फॉर्म, ये किस में आ गया, ये न्यूटन में आ गया, ठीक है। तो टोटल टेंशन हम लोग निकाल सकते हैं क्या, जो टाइट साइड का है प्लस ये वाला टीसी, क्या होता है, ये टाइट साइड का, टाइट साइड का, ठीक है, और ये फ्लैट साइड टेंशन, ठीक है। तो टोटल टेंशन क्या होगा, टोटल टेंशन इज इक्वल टू T1 प्लस, मतलब मैक्सिमम, ये दोनों में से मैक्सिमम, ठीक है, T1 हो गया और ये TC बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, क्वेश्चन में, बट सेंट्रीफ्यूगल टेंशन विल कम टू द पिक्चर, TC is what, velocity is greater than 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो T1 हमें आ रहा है, क्या आ रहा था, 10,583.95 plus TC 5.6 into B, so this is in our Newton, ठीक है। तो ये आया मेरे पास टोटल टेंशन, अल्टीमेटली हमें बी का वैल्यू निकालना है, वही तो क्वेश्चन में है ना, हमें क्या निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है, ये बी का वैल्यू, है ना। डायग्राम वाला पार्ट ये हो गया अपना, बी का वैल्यू निकालने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो और क्या किया, देखो टेंशन दे रखा है ये वाला, है ना, तो अब इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये किस में दे रखा है, 2.5 न्यूटन
2.5 न्यूटन पर mm²। मेगा पास्कल को ही 1 न्यूटन पर mm² बोल, इसका यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो टेंशन, ये न्यूटन, देखो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, वी नो एरिया। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर निकालनी है, ये क्या है, फोर्स, फोर्स ही तो है टेंशन। ठीक है। तो यहाँ पर T1 प्लस TC वाला टेंशन होगा अपॉन एरिया, एरिया मतलब कि ये वाला, दिस वाला एरिया। ठीक है, दिस वाला एरिया, दिस वाला एरिया, बी इंटू टी, बी इंटू टी, ये टेंशन ही होगा ना। एक बेल्ट इधर पुल हो रहा है, एक बेल्ट इधर हो रहा है, तो टेंशन में ही आ रहा है ना बेल्ट। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, T1 प्लस TC इक्वल टू बी इंटू टी इंटू सिग्मा टी कर सकते हैं। T1 प्लस T2 क्या है, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, फ्रॉम, थोड़ा स्पेस देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 9 क्या आ गया, T1 प्लस TC क्या है, 105893.95 प्लस TC इज हाउ मच, TC, अब TC तो यही ना, दोनों का समेसन ही है, प्लस 5.6 बी इज इक्वल टू बी, बी क्या है, बी हमें तो निकालना है, बी हमें निकालना है, बी किस में है, ये इधर लेफ्ट साइड वाला न्यूटन में है, और बी किस में है, बी mm में है, क्योंकि एज्यूम्ड वी हैव इन mm। ठीक है, तो mm में ही राइट साइड में रहने दो। टी किस में है, टी थिकनेस क्या निकाला हूँ, 14 mm निकाला हूँ क्या, इंटू 14, ये भी किस में है, इंटू mm में है। थिकनेस, सिग्मा टी हाउ मच, सिग्मा टी हाउ मच, 2.5 न्यूटन पर mm²। ठीक है, 2.5, 2.5, ठीक है, क्या है, न्यूटन पर mm²। तो ये mm² से ये दोनों कैंसिल, लेफ्ट साइड में भी न्यूटन, राइट साइड में भी न्यूटन, तो बैलेंस्ड, मतलब करेक्ट डायरेक्शन में वी आर गोइंग। अब यहाँ से हम लोग बी निकाल सकते हैं क्या, तो अल्टीमेटली 105893.95, ठीक है, ये डिवाइडेड बाई 14 इंटू 2.5 माइनस 5.6, so ultimately we are getting B is 359.99। ठीक है, इसमें आएगा B, किसमें एज्यूम किए थे हम लोग, mm में लेके चलो। ठीक है, तो दिस, इसको हम लोग मीटर में करते हैं, 10⁻³ ना, 0.35, 0.35, ठीक है, 99 मीटर और 3.36 मीटर। तो दिस विल बी आवर करेक्ट व्हाट आंसर, बी, है ना। तो दूसरा वाला एक मेजर जो सॉल्यूशन था वो भी निकाल। नाउ लास्ट इज द लेंथ ऑफ द बेल्ट, since this is our open belt, so we will can apply direct derived formula here. What is the formula, what is the formula, length of the open belt, हाँ, ये क्रॉस बेल्ट के लिए प्लस होता है। ठीक है,
और ये हो गया अपना ओपन बेल्ट की पाई R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, तो डायरेक्ट दिस एक्सप्रेशन derived formula will be using. So length of open belt is equal to pi R1 plus R2 plus 2x plus R1 minus R2 का होल स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, ये होता है। तो पाई R1 कितना था, R1 और R2 कितना था, R1 0.4 0.5 और ये 3 0.4 0.5 3 0.4 0.5 प्लस, ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस R1 0.5। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, R1 कितना है, R1 तो 0.4 है माइनस 0.5 है, अल्टीमेटली ये स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही आएगा अपॉन x मीन्स 3। So finally after calculation what we are getting, pi into 0.9 into 2 into 3 plus 0.4 minus 0.5 का whole square divided by 3. So we are getting 17.23 divided by 2. So 8 points we are getting pi 0.4 minus 0.5 का ये स्क्वायर करते हैं डिवाइडेड बाई 3, ओके, प्लस 2 इंटू 3 प्लस पाई इंटू 0.9. So we are getting 8 point. So we are getting 8.83 मीटर। आंसर करेक्ट है 8.83। ठीक है, करेक्ट। So this is our the length of the open belt. So in this way, this is the solution for our 20 marks in service exam conventional question solutions. ठीक है, quite lengthy, but weightage of the marks is quite high. Okay, so that's all from this chapter conventional question. Okay, we will be now next moving to our next chapter, which is strength of gear. Okay, so stay connected with this channel. Thank you all.